Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 7 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके व्यूज़ क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आज सबसे पहले आपका काम रहेगा, इस वीडियो को सभी बच्चे जल्दी से लाइक करो, 2 मिनट लगती हैं एंड देन वी विल प्रोसीड, राइट। इवन अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी करा करो इस लिंक को, ताकि उनको इस अमेजिंग अफेयर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल सके, जहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ इन सच अ वे कि आपको चीज़ें याद रहें, आप समझे उन चीज़ों को एंड याद रहें। वरना करंट अफेयर्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, राइट। तो आप इसको समझेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, रटेंगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ मैनी स्पीशीज़, या फिर हम बोलें क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ हाउ मैनी स्पीशीज वर फाइनलाइज्ड एट द 7th सेशन ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिटी ऑन स्पीशीज एंड culinary हर्ब्स एट कोची केरला। एक CAC होता है। CAC क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिटी। ये आपकी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर सेटअप की गई थी 1963 में। इसका जो हेडक्वार्टर आ जाता है वो है रोम में, रोम इटली में, करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब हम किसी प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, राइट। क्वालिटी अच्छा होगा, इंटरनेशनल मार्केट में वो और अच्छा प्राइस फैच करेगा। अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो उसको प्राइस भी नहीं मिलेगा, बल्कि लोग उसको बाय भी नहीं करेंगे। तो सिमिलरली एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए अभी 5 स्पीशीज़ को यहाँ पे फाइनलाइज किया गया था। ड्यूरिंग दिस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिटी की एक मीटिंग हुई थी, जो कि कोची केरला में हुई थी। एंड ये भी याद रखेंगे कि इसके द्वारा होस्ट की गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको होस्ट करा गया था, ठीक है। तो कितनी स्पीशीज यहाँ पे? 5 स्पीशीज के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया गया, फाइनलाइज। 5 स्पीशीज किस किस की, ये भी आपका क्वेश्चन पूछें तो आप याद रखेंगे कार्डेमम, टर्मरिक, जूनिपर बेरी। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, स्मॉल कार्डेमम, टर्मरिक, जूनिपर बेरी, एलिपिस एंड स्टार एनाइस, इनकी स्पीशीज यहाँ पे, इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड को यहाँ पे फाइनलाइज किया गया था। और ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमेटी का सेशन था, ये 7th सेशन था। लोकेशन भी याद रखेंगे, कहाँ पर? कोची केरला में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपका, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि इसकी CAC की मीटिंग कहाँ हुई थी? 7th, कोची केरला में। कितनी स्पीशीज फाइनलाइज की गई थी? 5 स्पीशीज फाइनलाइज की गई थी, ठीक है। और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम यहाँ पे, ताकि इंडिया के प्रोडक्ट्स जब हम एक्सपोर्ट करें तो एक अच्छा प्राइस मिल सके।
नेक्स्ट पे आते हैं, एनसीएमसी वॉलेट डेबिट कार्ड अभी लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा? एनसीएमसी क्या मतलब हुआ एनसीएमसी का? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी कार्ड, राइट। एनसीएमसी कार्ड अभी ये क्रेडिट डेबिट कार्ड है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फेडरल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। रुपे नेटवर्क पे ये वर्क करेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्टलेस और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके का कार्ड है। बेसिकली आप इसको टैप फीचर इस पे रहेगा, आप टैप कीजिए, आप इजीली इससे पेमेंट कर पाएंगे, करेक्ट। एज ऑफ नाउ एनसीएमसी वॉलेट में जो अमाउंट से फिक्स की गई है वो है 2000 रुपीज़, राइट, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पे? श्याम श्रीनिवासन। फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा फेडरल बैंक का? अलुवा में। अब अलुवा कहाँ पर है? अलुवा है आपका कोची, केरला में, ठीक। और इसको 1931 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड को जीत लिया है? बेसिकली क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए। ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो गए? बेसिकली बॉन्ड्स हम जानते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए आपसे पैसा लिया जाता है और आपको एक फिक्स रिटर्न वहां पे दिया जाता है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो गए? जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो आपका सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगाया जाएगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हम डेवलप करें वो रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड हो, उससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, एंड वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड हो, एंड वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया गया, बेसिकली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहा है कि किन्होंने बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड को जीत लिया है। तो वो रहेगा आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये अवार्ड जीत लिया गया है। इसका भी एक रीज़न है क्यों इन्होंने इस अवार्ड को जीता। बेसिकली इन्होंने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे, $750 मिलियन के ये ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए थे, राइट। एंड ये पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रीन बॉन्ड्स थे जो इंडिया में इशू करे गए थे ड्यूरिंग इंडिया की G20 जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी उसके दौरान। इन ग्रीन बॉन्ड्स को आरईसी के द्वारा इशू किया गया था, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए ही इनको यहाँ पे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित करा गया। फिर इसी के साथ साथ ये अवार्ड्स दिए कब गए थे, कहाँ पर? एट द एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में, करेक्ट। इस इवेंट के दौरान इनको सम्मानित किया गया। आरईसी की बात करें, ये गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड एक इंडस्ट्री रहेगी, कॉर्पोरेशन रहेगा। नेक्स्ट, फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी विल बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड? इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे इसको। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से यहां पे सम्मानित किया जाएगा एल.के. आडवाणी जी को। अब इतना मैंने आपको बता दिया तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता कौन सा है, तो वो है भारत रत्न, ठीक है। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत रत्न से। फिर ये 50वें रेसिपिडेंट बने हैं भारत रत्न अवार्ड के सिंस 1954, सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस अवार्ड, ठीक है। फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट है इनके द्वारा ये 7वें व्यक्ति बने जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी रिसेंटली किनको मिला था अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कर्पूरी ठाकुर को। पोस्ट ह्यूमसली दिया गया था, 2024 में ही इनको सम्मानित किया गया। पोस्ट ह्यूमसली मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। अगर एल.के. आडवाणी जी की आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था कराची में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, 1927 में। एंड ये डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के 2002 से लेके 2004 के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी यूनेस्को ने अपॉइंट किया ब्राजीलियन फुटबॉलर विनीशियस जूनियर को एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल के लिए अभी यूनेस्को ने किनको अपॉइंट किया है गुडविल एम्बेसडर? वो है ब्राजीलियन फुटबॉलर विनीशियस जूनियर को। मार्क करके चलेंगे, राइट। इनको गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। इनका काम बेसिकली क्या रहेगा कि इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना ग्लोबल लेवल पर, इनको क्योंकि एक पर्सनैलिटी है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, इनका काम रहेगा ग्लोबल लेवल पर यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा देना, ताकि रिमोट एरियाज़ में भी पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ठीक है। एंड ऑड्रे हॉजले जो कि डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के, उनके द्वारा इनको इस अवार्ड इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से दिया जाएगा। फिर हेडक्वार्टर की बात करें यूनेस्को का कहाँ पर रहेगा? पेरिस,
फ्रांस में। और अगर आपको याद हो तो इस बार पेरिस में ही 2024 में हमें ओलंपिक गेम्स देखने को मिलेंगे, जो कि जिसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी जुलाई 2024 में। इससे रिलेटेड भी अभी एक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHSRCL। डायरेक्ट क्वेश्चन है, विवेक कुमार गुप्ता यहाँ पे अपॉइंट किए गए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHSRCL। ठीक है, ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे राजेंद्र प्रसाद को, ये भी ये मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन। येमेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? अहमद अवाद बिन मुबारक। ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कहाँ के? येमेन के। नेक्स्ट, किनको सक्सीड करेंगे? PM डॉक्टर मईन अब्दुल मलिक सईद को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्मार्ट एम्यूनेशन की। स्मार्ट एम्यूनेशन मतलब जिसका अपना खुद का एक तरीके से आपको दिमाग हो। जैसे हम कहते हैं ना, मिसाइल को एक हमने टारगेट दे दिया तो वो उस पर जाके अटैक करेगी ही करेगी। बेशक वो जो हमारा टारगेट है वो मूव कर रहा है, तो मूव के हिसाब से वो हमारा मिसाइल भी अपने आप मूव करेगी। तो एक स्मार्ट एम्यूनेशन यहाँ पे डेवलप की गई है। 155 mm की ये स्मार्ट एम्यूनेशन रहेगी। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। किसके द्वारा? IIT मद्रास ने यहाँ पे टाई अप किया MIL के साथ। MIL क्या है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। 2021 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, राइट। और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे रवि कांत। ठीक है, तो मार्क करेंगे IIT मद्रास एंड MIL ने मिलके एक 155 mm की स्मार्ट एम्यूनेशन को डेवलप किया है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नासा के द्वारा भी रिसेंटली एक पोटेंशियल हैबिटेबल प्लेनेट डिस्कवर किया गया, जो कि है सुपर अर्थ। 137 लाइट ईयर्स अवे है। और अगर इस सुपर अर्थ की बात करें, इसका एक और नाम रहेगा, वो है TOI 715b। इस प्लेनेट को डिस्कवर किया गया था बाय टेस क्या है? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा। 137 लाइट ईयर्स अवे है एंड ये 1.5 टाइम्स रहेगा साइज ऑफ अर्थ एंड इसको एक हैबिटेबल जोन में कंसिडर किया जा रहा है एंड फुल रेवोल्यूशन इसका जस्ट 19 डेज का है। नासा की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के? बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? वॉशिंगटन DC में। एंड 1958 में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं निसार की। सबसे पहले निसार देख लेते हैं क्या है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये बेसिकली क्या था कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, इन स्टेट्स के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको मैप करने के लिए ये निसार बेसिकली लॉन्च किया था। और बेसिकली हम कहें तो मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका में पायलट बेसिस पे यहाँ पे इनकी मैपिंग की गई। तो ये था आपका फेज 1। अभी रिसेंटली कुफोस क्या है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। इनको पार्टनर बनाया गया है इसरो के साथ, ताकि जो सेकेंड फेज रहेगा, फेज 2 ऑफ निसार, उसको कैरी आउट किया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसीलिए कुफोस को यहाँ पे पार्टनर बनाया गया है इसरो का, राइट। तो फिर से देखते हैं, फेज 2 निसार के फेज 2 के रिसर्च प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए कुफोस ने पार्टनर किया इसरो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, DRDO के द्वारा भी सक्सेसफुली टेस्ट की गई 4 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यास, इसको अभी टेस्ट किया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। 4 बार इसको टेस्ट किया गया, करेक्ट। अभ्यास बेसिकली आपका हीट बेस्ड है। हीट क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, करेक्ट। इसको ITR चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इसको टेस्ट किया गया। ये ट्रायल्स आपके 30 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक कैरी आउट किए गए। टेस्ट में क्या देखा जाता है? स्पीड क्या है, वो कितना अच्छे से मूव कर पा रही है आपकी मिसाइल, देन इसके साथ किस ऑल्टीट्यूड तक जा रही है, किस रेंज, क्या रेंज रहेगी इसकी। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है एनवायरनमेंट के ऊपर। अभी नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है बरिंग फ्रॉग की, जिसका नाम रहेगा स्पियरोथेका वर्षाभू, राइट। स्पियरोथेका
वर्षाभू, ये एक स्पीशीज़ का नाम है, बरिंग फॉग की नई स्पीशीज़ आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया? बेंगलोर कर्नाटका में इसको डिस्कवर किया गया है। एंड इसका मतलब है अ जीनस ऑफ फ्रॉग दैट वेलकम्स रेन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी हमने देखा था कि पेरिस ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 में होंगे, जुलाई 2024 में इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। तो हम जानते हैं जब ये ओलंपिक गेम्स होते हैं तो टॉर्च जलाई जाती है, करेक्ट, और एक कुछ टॉर्च बियर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया से इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा, इनको सेलेक्ट किया गया एज द टॉर्च बियरर फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024। 11,000 टॉर्च बियर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है थ्रू आउट फ्रांस। 10,000 आपके पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक टॉर्च रिले में एंड 1,000 आपके पार्टिसिपेट करेंगे इन द पैरा ओलंपिक टॉर्च रिले में। ये जो ओलंपिक फ्लेम है इसको लिट कब की जलाया कब जाएगा? तो 16 अप्रैल 2024 को इसको जलाया जाएगा एट द ओलंपिया सेंचुरी इन ग्रीस। एंड फिर इसको 1 या 2 महीने तक इनकी मार्च होती है, इसको फ्लेम को ले जाया जाएगा मार्सेल फ्रांस में ऑन 8th ऑफ मई। एंड वहां से फिर 68 डे जर्नी रहेगी अक्रॉस 65 फ्रेंच टेरिटरीज। फिर इसको पेरिस ले जाया जाएगा एंड वहां पे ओपनिंग सेरेमनी इसकी कमेंस की जाएगी 26 जुलाई 2024 को। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा ये मेंबर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सिंस जून 2023। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व करते हैं हम हर साल 6 जनवरी फेब को ऑब्जर्व नहीं करते, सिर्फ 2024 में हमने 6 फेब को ऑब्जर्व किया, वरना जनरली ये सेकेंड ट्यूसडे को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ सेकेंड मंथ, जो कि हमारा फरवरी आ जाता है, करेक्ट। दैट मीन्स सेकेंड ट्यूसडे को ऑफ फरवरी मंथ, सेकेंड ट्यूसडे को ऑफ फरवरी मंथ हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं सेफर इंटरनेट डे। और इस बार 2024 में ये 6 फरवरी को आया और 2024 में हमने इसका 6ठा एडिशन ऑब्जर्व किया। एंड एक थीम याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, थीम क्या रहेगी? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये आपकी थीम रहेगी सेफर इंटरनेट डे की। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ पर आ जाते हैं। तो अभी यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा यूपी का बजट प्रेजेंट किया गया है फॉर फिस्कल ईयर 25 एंड यहाँ पे 3.6 लाख करोड़ रुपए का ये आपका बजट रहेगा। और फिस्कल ईयर 2025 का जो बजट है इसको डेडिकेट किया गया टू लॉर्ड रामा एंड विल एंश्योर लोक मंगल, दैट इज पब्लिक वेलफेयर। मार्क करके चलेंगे। यूपी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन रहेंगी? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड रहेगा। जेवर एयरपोर्ट भी आपका यहीं पर आ रहा है, मार्क करके चलेंगे। एंड रामलला मंदिर कहाँ पे बना था? अयोध्या, यूपी में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया गया कितनी स्पीशीज़ का? 5 स्पीशीज़ का ड्यूरिंग द 7th सेशन ऑफ द CAC कमिटी ऑन स्पीशीज़ एंड कलनरी हब्स, जो कि कोची केरला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। दैन फेडरल बैंक ने लॉन्च किया रुपे NCMC वॉलेट डेबिट कार्ड को। REC ने अभी बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड को जीत लिया है एट द एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024। फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न। यूनेस्को ने अपॉइंट किया ब्राजीलियन फुटबॉलर विनीशियस जूनियर को एज गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। विवेक कुमार गुप्ता को अपॉइंट किया गया MD ऑफ NHS RCL। अहमद आवाद बिन मुबारक इनको अपॉइंट किया गया एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन। IIT मद्रास ने पार्टनर किया MIL के साथ फॉर इंडियाज फर्स्ट 155 स्मार्ट एम्यूनेशन। नासा ने डिस्कवर किया पोटेंशियल हैबिटेट प्लेनेट जो कि है सुपर अर्थ, जो कि 137 लाइट ईयर्स अवे है। कूफोस इन्होंने पार्टनर किया इसरो के साथ ताकि निसार के फेज 2 पे वर्क किया जा सके। DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया 4 फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास। देन नई स्पीशीज डिस्कवर की गई बरिंग फ्रॉग की कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटका में। इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा इनको सेलेक्ट किया गया एज द टॉर्च बियरर फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। सेफर इंटरनेट डे की बात करें तो 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एंड यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेजेंट किया 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट फॉर फिस्कल ईयर 25। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है किन्होंने लॉन्च किया, हु लॉन्च्ड
2 डिजिटल मॉड्यूल्स विद इन सागर सेतु। 2 डिजिटल मॉड्यूल्स को यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया सागर सेतु के अंदर, किनके द्वारा? सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा। ये जो 2 मॉड्यूल्स की बात की जा रही है, एक तो है MSW मॉड्यूल और दूसरा है MMD मॉड्यूल। ये 2 मॉड्यूल्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इनके बारे में भी देखते हैं। करेक्ट, आप सबसे पहले देखिए सरबंदना सोनोवाल जी पिक्चर में 2 मॉड्यूल्स लॉन्च किए गए। पहला है मैरीटाइम सिंगल विंडो मॉड्यूल और दूसरा है मर्सेंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट मॉड्यूल। विद इन सागर सेतु इनको लॉन्च किया गया नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीटाइम प्लेटफॉर्म के अंडर टू ट्रांसफॉर्म एंड मॉडर्नाइज द इंडियन पोर्ट्स। यहीं पे देखें MSW मॉड्यूल, ये कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट इज डिजाइन टू डिजिटलाइज द एक्सचेंज ऑफ मैरीटाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। एंड ये जो MSW पोर्टल है ये हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को टू अलाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो कि सेट किए जाते हैं बाय IMO, राइट। एंड दिस विल रिड्यूस द वेटिंग टाइम फॉर वेसल्स एंड गुड्स इन द पोर्ट्स बाय अप टू 40%। नेक्स्ट आ जाता है फिर MMD मॉड्यूल। ये MMD मॉड्यूल का काम क्या रहेगा? ये बेसिकली आपका मैरीटाइम मोबाइल डोमेन प्रोसेस। यहाँ पर जो आपके शिप्स जो पोर्ट्स पर आके डॉक करते हैं, राइट, उनका पूरा डाटा मेंटेन किया जाएगा, राइट, कब आ रहे हैं, कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो भी वेसल्स की हम अगर इनकी सफाई करना चाहें, राइट, इनकी मेंटेनेंस करना चाहें तो उसका भी मॉनिटरिंग हो सकती है। फिर कितने बजे ये जाएगा तो उससे पहले हमें सारा डाटा को रिकॉर्ड करना होगा, सारा जो गुड्स है उसको लोड करना होगा, तो उस सारी चीज़ों को भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा अंडर दिस MMD मॉड्यूल। ठीक है, तो ये 2 मॉड्यूल यहाँ पे याद रखेंगे। फिर इसके द्वारा याद रखेंगे स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स। ये स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ऑर्गेनाइजेशन को टू रिकॉग्नाइज देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। यहीं पर अगर बात करें स्वच्छता पखवाड़ा, ये क्लीनलीनेस कैंपेन था, 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक हुआ 2023 में एंड विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ 62 इवेंट्स। यहीं पे स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इंडिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु एंड थर्ड पोजीशन पे विशाखापट्टनम पोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु को चेयर 12th इंडिया ओमान जॉइंट मैरीटाइम कॉर्पोरेशन जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी। तो ये जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी अभी 12th एडिशन था इस इंडिया और ओमान मीटिंग के बीच का, किसके द्वारा चेयर की गई? को चेयर की गई गिरिधर अरमाने जी के द्वारा। तो इंडिया से कौन डेलीगेशन थे जिन्होंने चेयर किया या इंडिया को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर? वो है श्री गिरिधर अरमाने जी। ये कौन है? ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं। गिरिधर अरमाने जी 2 डे लॉन्ग विजिट पे थे टू ओमान ऑन 30th एंड 31st ऑफ जनवरी। एंड यहाँ पर इन्होंने हमने देखा कि कई MOUs भी साइन किए गए हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस मटेरियल प्रोक्योरमेंट, राइट। एंड यहीं पर हम देखेंगे इन दोनों इंडिया और ओमान के बीच में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की भी बात की गई, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की गई इंडिविजुअल्स को इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, करेक्ट। जॉइंट एक्सरसाइजेस कराने की बात की गई, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की गई, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए शिप बिल्डिंग मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी डिफेंस कॉपरेशन हमें देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर GRSC, मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। GRSC ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके साइन किया एक फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस पैक टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स। तो GRSC ने रॉल्स रॉयस के साथ यहाँ पर अभी टाइप किया है ताकि प्रोड्यूस कर सके, साइन किया गया अ फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस पैक टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स को। पहली चीज़ याद रखेंगे ये, राइट। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, रॉल्स रॉयस ने ही दूसरा जो एक डील साइन करी वो है आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ, आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ। और ये जो दूसरी डील साइन की गई है ये 7 साल की डील साइन की गई है, करेक्ट। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करें तो ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी रहेगी। एंड रॉल्स रॉयस ने GRSC के साथ टाइप किया टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स, और दूसरा आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ टाइप किया ताकि कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन्स कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं रॉल्स रॉयस 7 साल की डील विद आज़ाद इंजीनियरिंग फॉर कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जय शाह इनको रीअपॉइंट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर विच टर्म? तो ये इनका 3rd टर्म रहेगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल,
करेक्ट। एक चीज और, जय शाह ये कौन है? ये सेक्रेटरी हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ बीसीसीआई। करेक्ट, जय शाह सेक्रेटरी हैं टू द बोर्ड ऑफ बीसीसीआई एंड इनको रीअपॉइंट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द थर्ड टर्म। नेक्स्ट आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, जय शाह ये अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। मूविंग ऑन, किस बॉलीवुड एक्टर या विच बॉलीवुड एक्टर बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट? बोट हम जानते हैं स्मार्ट वेरेबल्स ब्रांड है आपका, यहाँ पर आप इसमें आपके स्मार्ट वॉचेस, देन आपके ईयरबड्स, ईयरफोन्स, हेडसेट्स, ये सब आ जाते हैं। तो अभी रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर, राइट, नॉट रणबीर, रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर, इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। स्पोर्ट्स पर आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ अभी, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो कौन सा एडिशन हमें देखने को मिला था? तो 6th एडिशन हमें देखने को मिला था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। किसके द्वारा होस्ट किया गया? किस स्टेट ने होस्ट किया? तमिलनाडु ने इसको होस्ट किया था। मेडल टैली में कौन सी स्टेट ने टॉप किया? महाराष्ट्र ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया विद अ टोटल ऑफ 158 मेडल्स। 158 में से 57 गोल्ड, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज रहेगा। फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं तमिलनाडु एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाता है हरियाणा इन द मेडल टैली। करेक्ट। यहाँ पे एक मैस्कॉट याद रखेंगे, इसका मैस्कॉट का नाम था वीरा मंगाई। वीरा मंगाई ये आपका मैस्कॉट था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे एडिशन का, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। राइट, एक और चीज़ याद रखेंगे, ये 19 से लेके 31 जनवरी तक हुए थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किसने किया? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडियन वीमेन हॉकी टीम ने फिनिश किया सेकंड, इनका सिल्वर मेडल आया। ये रनर अप रहे कहाँ पर? FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप में। आई रिपीट, इंडियन वीमेंस हॉकी टीम इन्होंने ये रनर अप रहे, सिल्वर मेडल रहा इन द FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप 2024 आफ्टर लूजिंग टू नीदरलैंड। एंड नीदरलैंड की यहाँ पे क्या रही? फर्स्ट पोजीशन आ जाती है। इन्होंने जीत लिया है FIH 5S वीमेंस वर्ल्ड कप, करेक्ट, जो कि 24 से 31 तक हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स, अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। करेक्ट। एंड इसी दिन रामसर कन्वेंशन है उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 2 जनवरी को। एंड थीम याद रखेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स का जो पीपल के लिए, जो प्लैनेट के लिए, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंस है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है अंडर दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम रहेगी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी रिसेंटली 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी है तमिलनाडु की? वो है तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु स्टेट कौन सी है? तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, थ्रिप्स पार्विस्पाइनस, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है? सेकेंड, हेज जियंगॉब, ये अभी रिसेंटली पास इनका निधन हो गया, ये प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के? थर्ड, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, ये इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर? और ये एपिग्राफी होता क्या है? व्हाट इज दिस? टेल मी अबाउट दिस। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अभ्यास, क्या है? नेक्स्ट, अभी हमने बात की थी हीट की, राइट, तो समझ जाना, ऑप्शन मैंने पूरा ही हिंट दे दिया, हीट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, ये अभी न्यूज़ में था, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स, सबके साथ शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.